Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We are going to start our new chapter, that is the light. We are talking about light. We will be studying all the properties, the nature, the effects, or you can say all the mesmerizing facts about the light. तो हम लोग लाइट के बारे में सब कुछ जानेंगे जितना भी हमें जानना चाहिए, ठीक है. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट को इतना अच्छा से स्टडी करेंगे कि हम लोग क्या कर सके, स्कूल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के साथ साथ हम NTSA NSJS जैसे एग्जाम भी क्रैक कर सके. ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर. Also make sure that you study this chapter with very much intensity as you study till now. All right, so the next thing I want to tell you is that if you want any DBP or study material, you can access them through our Telegram channel. All right, what you need to do is you need to write this code TTB010 in the search box of the Telegram app. If you write this, our channel appears and then join it and you can access all the DBPs and study material over there. All right, now see, दिस इज़ अ टीम एंड ये जो टीम है ये आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करिए. वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट definitely you crack the examination, right? That is the main thing. So we are preparing you for the science and the mathematics olympiads, and basically we are covering the topics physics, chemistry, bio along with maths and math. All right, these are the subjects we are working in and we are providing you the lectures, the quality lectures, which is very much helpful to you all, and of course these lectures are free for everyone. So basically you should definitely study with it, and of course if you want to share them, you should share it. All right, and actually you should share it, right? That is the most important thing. Now see, along with that thing that we are providing you the lectures, along with that we have also prepared some packages for you all. The main thing is, let me find my pen. I'll be telling you the main thing. All right, now see, the main thing is the packages, which includes all the things like the testing, the homework, the material, the classes, and all the things are totally packed up in the packages. So basically we are treating that as a full package. So if you are thinking that you must study for the competitive examinations, either you watch these free video lectures or either you can buy our package. If you are interested, then you can definitely buy them. What you will be getting, the study material. All right, you will be getting the live classes, which are free definitely. Next you will be getting the homework submission feature. Basically you are doing the homework and then you will be submitting to us. Third thing, you will be getting the testing, that is the bi-weekly quiz. You should attempt it twice a week, and then you will be getting the fifth thing, that is the periodic test papers. So basically periodic test paper में सबसे important चीज़ क्या होती है? Periodic test papers actually आपको ये बताते हैं कि जब final examination जो आप देने की सोच रहे हैं उसमें कितना पैटर्न कैसे आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक यू कैन से कि कितने टाइम इंटरवल में, हाउ मच क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, और यू कैन से द डेप्थनेस ऑफ द क्वेश्चंस डेफिनेटली. सो बेसिकली यू विल बी फैमिलियर विद द एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जैक्ट एग्जामिनेशन पैटर्न, and that's how you are going to rehearse the examination before giving it finally. All right, and that is how this periodic test papers will be helping you in your preparation journey, right? So this is the full package, and definitely you can buy the test series also. If you are interested in just the test series, you can definitely do this. All right, you will be getting the periodic test papers, recorded and live classes, and bi-weekly quizzes. You will be getting three things here in the test series basically. So these lectures are the free for everyone. Definitely you can get them. All right, you can share them so that everyone can be benefited by them. Also remember to use my code CYLive if you ever buy a package from the talkingtextbooks.in. So CYLive will be giving you the 30% discount if you buy the packages. All right, any of the package you buy from talkingtextbooks.in. And if you are like having any query like how these will be benefiting you, also if you want anything further, not anything but you can say the further information, right, about these packages, you can call us on the number 9195, just a second, it get changed, 919549041111. So you can call us on this number and all your queries will be resolved over there. Make sure that you do that so that all your doubts will be cleared.
Now, let's move on to the next thing, the exciting thing, because our chapter is light chapter and we are going to do some introductory things today only. तो basically हो सकता है जो आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, like the theories, मतलब लाइट को जब शुरुआत में समझा जाने लगा या फिर लाइट को जब लोगों ने सोचा कि ये भी कुछ चीज़ है, वैसे दिखाई तो देती नहीं, बट लोगों ने सोचा कि दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग, आई मीन हाउ, कैसे सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, कैसे ये भी कोई चीज़ होती है, लाइट कुछ होता है, ऐसा भी हमको तो पता नहीं था, राइट। बट फिर जब बेसिकली जब पता चला, साइंटिस्ट लोगों ने अपना दिमाग लगाना स्टार्ट किया, उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इट्स बिहेवियर अबाउट सम फिनोमिनाज एंड ऑल, तब उन्हें पता चला और धीरे धीरे अलग अलग थ्योरीज लाइट के बारे में आई। कोई कहता है पार्टिकल नेचर है, कोई कहता है वेव नेचर है, फिर किसी ने और भी ना जाने बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको बताने की कोशिश की दैट व्हाट इज इट। So basically we are going to study all the history about the light today itself, along with its nature. We will be getting the knowledge of the nature, what is it, how it behaves, and all the things together in this lecture. So basically this lecture is all about the nature and the properties of light, the basic things you should know about the light before even studying the real phenomena. Alright, so basically we will be doing that. Before that, you need to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on the daily basis. That is the most important thing, because अभी तक हम अपने थर्ड चैप्टर पे आए हैं, पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दैट डजंट मीन कि हम उनको रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू रिवाइज इट, ठीक है। आप जो हैं 15 मिनट्स नहीं करेंगे रिविजन, आप करेंगे 30 मिनट्स, राइट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने पूरे डे में 30 मिनट्स ऐसे निकालो जब आप रिविजन करोगे पुराने जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई है, द टॉपिक्स, द चैप्टर्स, ऑलराइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वापस रिपीट करो, ऑलराइट, एंड डेफिनेटली डू द होमवर्क एंड सबमिट इट टू अस, ऑलराइट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होमवर्क नहीं छोड़ना है तुम लोग को इस चक्कर में, ठीक है। Now see what we will be learning today, the specific topics. We will be learning about the light, what is it, how it behaves. We will be talking about the branch of physics, that is the optics, because optics is the branch of physics in which we study light. Alright, theories about nature of light, क्या क्या theories आई, किस किसने theory दी, ठीक है, उनको reject किया गया, उनको accept किया गया, that is what we are talking about. Dual nature of light, we are going to study. Source of light, the light, where do we get that. Medium of light, and then we will be talking about the characteristics of light along with the behavior. All right, that is the most important thing, because this is the starting, right? This is the first chapter and this is just the introductory part. अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे समझ में आ जाता है, उसका बिहेवियर समझ में आ जाता है, उसके बारे में समझ में आ जाता है, देन फर्दर जो फिनोमिनाज हम लोग स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग एंड अदर थिंग्स जो भी हैं, उन अगर फिनोमिनाज को स्टडी करेंगे, दैट वुड बी वेरी मच ईजी फॉर यू इफ़ यू अंडरस्टैंड the nature of the light. All right, that's why this topic, this lecture is totally important, right? Now let's talk about light, ठीक है। तो उसके लिए to get the definition, right, हम out of the blue हम question नहीं बना सकते या फिर कोई out of the blue definition नहीं बना सकते, right, light की। तो उसके लिए let's just answer some questions, ठीक है। I want you to answer some questions. So basically first question is, which sense helps in seeing? This is the easiest question you ever get, all right, because you are in 10th class, right? That's why this is the easiest for you. So see, विच सेंस हेल्प इन सी थिंग्स, कौन सी ऐसी सेंस है जिसकी हेल्प से हम चीज़ें देखते हैं। ये जो बातें हैं ये बच्चों को पता होगी और बच्चों ने झट जो है आंसर कर दिए। नाउ सी, जो सेंस हमें देखने में मदद करती है, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी सेंस है, 5 सेंसेस, यू नो ऑल, राइट। सो ऐसी सेंस जो हमें देखने में हेल्प करती है, दैट इज द सेंस ऑफ विजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंस ऑफ विजन, राइट। Alright, so that is the sense of vision, ठीक है, that means we can see, that is the sense by which we can see all the things, right? Next question, what I want you to ask is, can we see light? This is the basic question. और ये जो question है ना, काफ़ी लोग इसमें confuse हो जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कैन वी सी लाइट? क्या हम लाइट को देख सकते हैं? आर यू एबल टू सी द लाइट राइट नाउ? अपने आसपास देखो, क्या तुम लाइट को देख पा रहे हो? तुम्हारे आसपास लाइट प्रेजेंट है, आर यू एबल टू सी इट?
ऑफ कोर्स नो, जो भी समझदार बच्चा होगा वो यही बोलेगा कि हम लाइट नहीं देख सकते, बिकॉज लाइट इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी लाइट, एक्चुअली वी आर नॉट इवन सीइंग द लाइट्स, वी आर सीइंग द थिंग्स अराउंड अस, ऑलराइट. सो my answer would be a no, a big fat no. All right, next question, can we see things? क्या हम चीज़ों को देख सकते हैं? ऑल द थिंग्स अराउंड यू, डेफिनेटली यू कैन सी दैम, राइट. आप अपने फ़ोन को देख रहे हो, आप इस लेक्चर को देख रहे हो, राइट. यू आर राइटिंग इन अ नोटबुक, तो तुम अपनी नोटबुक को भी देख रहे हो, पेन को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, राइट. ऑल द थिंग्स अराउंड यू, योर बेड, टेबल, वॉल्स, फैन, लाइट, बल्ब, आई एम टॉकिंग अबाउट द बल्ब, राइट. तो ये जो भी चीज़ें हैं, यू आर एबल टू सी दैम, ऑफ कोर्स. दैट मीन्स वी आर एबल टू सी द थिंग्स, बट वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट. हम चीज़ों को देख सकते हैं, बट हम लाइट को नहीं देख सकते हैं. सो कैन वी सी थिंग्स? ऑफ कोर्स वी डू, राइट. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर, yes we can see light, not light, I'm talking about the things only. Yes, we can see the things, not the light. All right, next question is, can we see things in the dark? क्या हम डार्क में चीज़ें देख सकते हैं? जब कभी भी अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, टोटल पिच ब्लैक डार्क, तब अगर तो कुछ ऐसा हो, क्या तब तुम चीज़ों को देख पाते हो अपने आसपास? इज इट पॉसिबल फॉर यू? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है, अनलेस यू हैव सम स्पेशल पावर्स. अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर्स होंगी, सिर्फ तभी तुम ऐसा कर पाओगे. सो बेसिकली, कैन वी सी थिंग्स इन द डार्क? वी आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज humans does not have a tendency to see that. All right, some animals do, I know, but if a human sees things in the dark, that means he got them some special powers. All right, so basically हम लोग बोलेंगे not at all, because humans do not have that tendency to see in the dark. All right, now the next thing, can we see things if there is light but no sense of sight? क्या हम तब चीज़ों को देख पाते हैं कि जब हमारे पास सेंस ऑफ साइट नहीं हो? मीन्स वी डू नॉट हैव आईज, बट देयर इज लाइट आउट देयर इन द डे. ठीक है, डे है, आसपास सन की लाइट रहेगी. इफ़ यू हैव द सेंस ऑफ साइट, then definitely you can see all the things. But if you do not have the sense of sight, in that case you are not able to see things, right? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है, तो it would be a no. जब हमारे पास sense of sight ही नहीं है, then we are not able to see. All right, हम लोग देख ही नहीं पाएंगे अपने आसपास. So basically इन सभी क्वेश्चन से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी. ठीक है, इन सभी क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा दैट देयर इज अ नीड ऑफ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इफ यू वांट टू सी अराउंड यू. ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंस ऑफ साइट, यू नीड अ सेंस ऑफ साइट, एंड सेकेंड थिंग इज द लाइट, यू नीड लाइट टू सी द थिंग्स. अगर आपके पास सेंस ऑफ साइट है बट लाइट नहीं है, ये तो हमने किस में पता किया? डार्क में पता किया, राइट. तो ये चीज़ हमें पता चल गई है कि भाई हमारे पास सेंस ऑफ साइट है but there is no light around us. If that happens, then we are not able to see the things. And the second thing is, if we do not have the sense of sight but light around us, and then only we are not able to see the things, right? So there has to be the two conditions in which we are able to see. ऑलराइट, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंस ऑफ लाइट होना चाहिए हमारे आसपास, डेफिनेटली. सेकेंड थिंग, हमारे पास सेंस ऑफ साइट होना चाहिए. इफ वी हैव दीज टू थिंग्स, वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस. ऑलराइट, द सराउंडिंग्स अराउंड अस एंड एवरीथिंग अराउंड अस, वी कैन सी दैट. बेसिकली दैट इज द मेन थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट. ऑलराइट, और इन क्वेश्चन से आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई है. जब हमने डार्क की बात की कि भाई जब लाइट नहीं थी, क्या हम तब देख पा रहे थे? नोप्स. दैट मीन्स जब जब लाइट हमारे आसपास प्रेजेंट रहेगी, तब तब हम चीज़ों को देख पाएंगे, राइट. जब जब लाइट हमारे आसपास रहेगी, तब तब हम देख पाएंगे, बट हम लाइट को नहीं देख पाएंगे. दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द अदर थिंग्स विजिबल. ऑलराइट, हम खुद तो लाइट इनविजिबल होती है, बट अपनी आसपास की चीज़ों को वो इल्यूमिनेट कर देती है, उनको देखने में हेल्प करती है. जहाँ जहाँ भी लाइट जाएगी, लाइट हमें नहीं दिखाई देगी, बट वी कैन सी दैट थिंग जिसके ऊपर लाइट जा रही है. ऑलराइट, या जिस तक लाइट पहुंच रही है. ऑलराइट, दैट इज द मेन थिंग जिससे हम अपना डेफिनेशन बनाने वाले हैं लाइट का. ऑलराइट, now see, the definition is light is an invisible form of energy which causes the sensation of vision. So if there is a presence of light around you, you are able to see the things. Of course, I will assume that you have the sense of vision.
Alright, so basically this is the definition of the light, that it is an invisible form of energy. Remember, this is a form of energy just like the heat energy or you know the other energies, potential energy, kinetic energy. This is just similar to that one. Alright, it is also a form of energy which can be changed into various things, because you do have light in the form of light energy when you switch on your bulb. Right, इलेक्ट्रिक बल्ब को जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें हीट प्लस लाइट एनर्जी हमें मिलती है, राइट. तो ये जो लाइट एनर्जी तुम्हें मिल रही है, एक्चुअली दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन, राइट. आपको क्या मिल रहा है, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, ऑलराइट, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया, तब जाके वो आपको मिल रही है, राइट. तो दिस इज एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स, राइट. अभी तो हम लोग सोलर एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, सन की लाइट को, यानी दिस लाइट एनर्जी एंड द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन अगेन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड द लाइट एनर्जी सो दैट यू कैन सी इन योर रूम, राइट. तो ये जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज चल रहा है ये चलता ही रहेगा, बट रिमेंबर दिस इज जस्ट अ टाइप ऑफ एनर्जी. ऑलराइट, सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज इनविजिबल and which causes the sensation of vision. We are able to see because of this energy around us. All right, अब मुझे जो है ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है that light is invisible but it is a form of energy and it gives us the sensation of vision. Just because of this light we are able to see. If there is no light we aren't able to see the things around us. Now see, ये हुई लाइट की बात. जब हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, ऑलराइट, लाइट कैसा बिहेव कर रही है, ठीक है, जैसे लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं इन द मीडियम. लाइट में कुछ चेंज होता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, कभी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो वैक्यूम से ट्रैवल करती है, मीडियम से ट्रैवल करती है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम्स, राइट. ये जब हम बिहेवियर या फिर उसका कुछ भी लाइट के बारे में जब हम कुछ स्टडी कर रहे होते हैं, हम उसे उस ब्रांच में इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक्स. ऑलराइट, सो बेसिकली दिस ऑप्टिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट. ठीक है, क्योंकि जो फिजिक्स है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है. ऑलराइट, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो वो एक अलग ब्रांच में चला गया है जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. आप लाइट के बारे में पढ़ते हो, देन दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द ऑप्टिक्स. ऑलराइट, एंड ऑल्सो दिस ऑप्टिक्स इज ऑल, ये जो है वो अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है, दिस ऑप्टिक्स ऑल्सो, राइट. तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कि जब हम अलग अलग चीज़ों के बारे में और देखते हैं कि अलग अलग ब्रांचेस जो होती हैं, जस्ट साउंड एनर्जी वेव्स, राइट, दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांच. ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस जो हैं फिजिक्स में डिवाइडेड हो गई हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द लाइट, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी इन द ऑप्टिक्स ब्रांच ऑफ द फिजिक्स. ऑलराइट, और ये जो ऑप्टिक्स ब्रांच है उसे हमने डील किया है स्टडी ऑफ लाइट, राइट. सो दैट मीन्स आप लाइट को स्टडी कर रहे हो. ठीक है, यू आर स्टडिंग लाइट ओनली, उसका बिहेवियर, उसका प्रोपोगेशन, हाउ इट प्रोपोगेट्स, हाउ इट बिहेव्स, हाउ इट मूव्स. ठीक है, और अलग अलग उसका स्ट्रक्चर क्या है एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द लाइट. ऑलराइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज द ऑप्टिक्स ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट. अब ये जो ऑप्टिक्स ब्रांच है इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मीन्स दिस इज ऑल्सो कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, ऑप्टिक्स है, हम लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर स्टडिंग, वी कैन स्टडी द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द लाइट. लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और द रे ऑप्टिक्स. जब हम एज अ रिप्रेजेंट करते हैं और कि भाई लाइट यहाँ जाएगी, टकरा के वहाँ जाएगी, लाइक ऑल दैट रिफ्लेक्शन. If we study about that refraction, that we definitely are going to study about the geometrical optics or the ray optics. Alright, फिर आता है नेक्स्ट क्वांटम ऑप्टिक्स. व्हेन वी स्टडी लाइट इन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग स्टडी करें, लाइक हम बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ही स्मॉल लेवल पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं लाइट का, देन वी आर स्टडिंग द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स or quantum optics actually. And the third one is the wave optics and the physical one. ठीक है, so when we see that light behaves like a wave, और हम उसके बारे में देख रहे होते हैं कि भाई इन एज अ बिहेव एज अ
वेव हाउ इट इज बिहेविंग, किस तरीके का फिनोमेना शो कर रही है, किस तरीके का फिनोमेना शो नहीं कर रही है, ये चीज़ें अगर हम स्टडी करते हैं देन वी आर स्टडी दी वेव ऑप्टिक्स और द फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। सो बेसिकली इस ऑप्टिक्स के अंदर मतलब अगर तुम लाइट को स्टडी कर रहे हो तो भी देयर आर 3 ब्रांचेस जो कि तुम्हें स्टडी करनी हो सकती है और यू कैन डेफिनेटली चूज एनीवन, बट बेसिकली हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर जितना है हम उतना ही स्टडी करेंगे, भले ही वो फिर तीनों का हो। ऑलराइट, तो देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड देन क्वांटम ऑप्टिक्स एंड देन द वेव और द फिजिकल वन, ठीक है। दीज आर द 3 ऑप्टिक्स एंड ये ऑप्टिक ब्रांच के अंदर बिल्कुल डिवाइडेड है। ऑलराइट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ऑप्टिक्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, theories about the nature of light. So we are studying about theories. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा controversial theories develop हुई। कैसे? क्योंकि क्या होता था पहले जब ऑब्जर्व किया जाता था ड्यूरिंग दी यू कैन से द 18, 17, 15, 16 द वेरी मच इन दी पास्ट, राइट। तो उस वक्त डेफिनेटली काफ़ी कम थियोरीज डेवलप हो पाई थी, ठीक है। तो उस वक्त अगर हम किसी फिनोमेना को स्टडी कर रहे होते थे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी दैट। फिर भी वहाँ पर सबसे पहले एक थ्योरी निकाली गई लाइट के बारे में स्टडी करके। पहली थ्योरी वो निकाली गई पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ये निकाली किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने इस थ्योरी का नाम क्या दिया? न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? दैट लाइट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मूव करती है, ठीक है। वो बहुत तेज स्पीड से मूव करती है, वैक्यूम में मूव करती है, बट इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो उन्होंने बताया कि जो लाइट का नेचर है एक्चुअली दैट इज ऑफ द पार्टिकल नेचर। ये फर्स्ट थ्योरी निकल कर आई थी, ठीक है। एंड ये जो पार्टिकल नेचर है जो न्यूटन ने बताया था, तो जिन पार्टिकल्स को वो बोल रहे हैं उन्होंने उसका नाम क्या दिया? कॉर्पस्कल्स। ऑलराइट, सो ही नेम दैट कॉर्पस्कल्स। उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो एज अ स्ट्रीम बिहेव कर रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इट गोज लाइक अ स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल्स। बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, दे आर मूविंग विद ईच अदर, राइट, दे आर मूविंग। सो दैट इज द नेचर ऑफ द लाइट दैट वॉज टॉट बाय द न्यूटन। उन्होंने ये फिनोमेना जग के सामने रखा, पूरी संसार के सामने रखा, alright, that he found some things like that। लेकिन ये जो थ्योरी है उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो समझा दिया। ऑलराइट, उसने क्या किया? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो फिनोमेना हैं जिन्हें इस थ्योरी ने समझा दिया। तो सब लोगों ने माना कि भाई इन दोनों थ्योरीज को समझा दिया है पार्टिकल नेचर ने, तो इसका मतलब पार्टिकल नेचर होना चाहिए। जब हमारे पास प्रूफ है कि ये दोनों थ्योरीज, तो ये दोनों जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन हो पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद इस थ्योरी ने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाई। तब लोगों ने जो है इसके प्रति ऐसा दिखाया कि ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला, और ये इट कैन बी टेकन एज अ हाफ ट्रू, ठीक है। तो उस वक्त क्या हुआ? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये दो ऐसे फिनोमेना है। इंटरफेरेंस मतलब जब कभी भी दो वेव्स आती है, ऑब्वियसली बहुत सारी वेव्स हैं हमारे आसपास, ठीक है, एक वेव ऐसे आ रही है, एक वेव ऐसे आ रही है, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाउ दे आर बिहेविंग। ऑलराइट, ये जो हम स्टडी करते हैं इसे, ठीक है, एंड दिस फिनोमेना कि तब क्या होता है जब दो वेव्स मिलती हैं, उसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, दिस फिनोमेना को। एंड डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना कि जब लाइट के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तब कैसे वो बिहेव करती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ऑलराइट, सो ये जो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन है, ये लाइट की ये वाली जो थ्योरी थी पार्टिकल नेचर, जो इसका बताया गया दैट इट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, ये नहीं समझा पाई। इस वजह से न्यूटन की जो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी इसको फिर यहीं पे रोक दिया गया, नहीं माना गया काफ़ी लोगों ने कि ये सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाती है, बाकी और चीज़ों को नहीं समझा पाती है। वाई लाइट इज बिहेविंग और वाई लाइट इज शोइंग द इंटरफेरेंस ऑफ द डिफ्रैक्शन फिनोमेना, ये चीज़ें लोगों को जो है पता चले कि भाई ये नहीं समझा पा रही है, तो इसको इतना ज़्यादा मान्यता नहीं दी, बट स्टिल इट इज़ द नेचर, राइट। अब देखो इसके बाद जब ये पार्टिकल के लिए सोचा कि हमें एक और थ्योरी की ज़रूरत है, हमें ऐसी एक और थ्योरी की ज़रूरत है जिसकी हेल्प से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी समझ में आ सके, मींस इनको भी हम एक्सप्लेन कर पाएं कि क्यों लाइट ऐसा शो कर रही है फिनोमेना, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया पार्टिकल से, राइट, लेकिन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए हमें भी चाहिए एक नया थ्योरी। सो इसके लिए एक और थ्योरी आती है
जिसे बोला गया वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब लोगों ने जो है इसको स्टडी किया, जिन्होंने हाइजेंस हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने क्या कंसीडर किया दैट लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव है। उन्होंने क्या बोला, लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव। व्हाट इज दैट, जस्ट अ सेकेंड। ये जो मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जिन्हें मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, जिन्हें मीडियम चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, तो आई एम राइटिंग दिस, दोज रेज which needs medium to propagate। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि हाइजेंस ने ये बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है, और उन्होंने ये बताया कि वो एक मैकेनिकल वेव है। दैट मीन्स उसे हर बार एक मीडियम चाहिए होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बताया, अब जब सबने सोचा कि अगर ऐसा है, मीन्स अगर ये वेव नेचर की है और ये मैकेनिकल वेव है, अगर ये किसी मीडियम के थ्रू जाती है तो ये सन से अर्थ तक कैसे पहुंचती है, वहां पर क्या। तब इन्होंने बोला कि एक्चुअली स्पेस, जिसे अभी हम वैक्यूम बोलते हैं, कि देयर इज नथिंग इन दैट वैक्यूम, राइट। उन्होंने क्या बोला, देयर इज अ मीडियम। तो उन्होंने बोला कि जो हमारी अर्थ, अदर प्लैनेट, सन, ये सब क्या करते हैं, एक्चुअली एक मीडियम में फ्लोट करते रहते हैं, एंड दैट मीडियम, ही नेम दैट मीडियम एज ईथर। ऑलराइट, किधर गया वो, ये रहा। इट इज, उन्होंने एक इमेजिनरी बोला, ही डजंट नो दैट, बट ही गिव अ हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो इट बिहेव्स लाइक कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि लाइट एक वेव है और उसे मीडियम चाहिए जाने के लिए, एंड दैट मीडियम इज ईथर, जिसकी हेल्प से लाइट सन से अर्थ तक आती है। ऑलराइट, दैट मीन्स सन और अर्थ के बीच में एक मीडियम है जिसे अभी हम वैक्यूम कहते हैं, राइट। बट ही सेड एट दैट टाइम देयर इज ईथर, और उसके अंदर सन एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड ऑल द स्टार्स फ्लोट करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, बट उसके बाद ऐसा हाइजन ने जो है सबको बताया, बट उसके थोड़े टाइम बाद जो मैक्सवेल थे, ठीक है, जो मैक्सवेल थे, उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो वैक्यूम है एक्चुअली देयर इज नथिंग, नो पार्टिकल, नथिंग, दैट इज वैक्यूम। ऑलराइट, एंड उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में से जा सकती है। ऑलराइट, तो उन्होंने ये चीज बताया कि लाइट को मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लाइट बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं आपस में परपेंडिकुलरली मूव करते रहते हैं, दे आर वेरिंग, यू कैन से द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ऑलराइट, ये चीज़ उन्होंने बताई, और उन्होंने फिर स्पीड भी बताई कि वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ऑलमोस्ट चलती है। ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब किसी भी पार्टिकल के दिस इज द हाईएस्ट स्पीड जिस पे लाइट ट्रेवल करती है। सो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया मैक्सवेल डिक्लेयर्ड लाइट वेव्स एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यहीं पे प्रूफ हो जाता है दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में से भी जा सकती हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट नीड एनी मीडियम। तो यहाँ पे ये चीज़ मना हो जाती है कि भाई वो मैकेनिकल थी। हाइजन ने जो बताया था उसे गलत साबित कर दिया गया, और देयर इज नो ईथर, ऐसा उनको बोला गया भाई ये कोई ईथर नहीं है, देयर इज वैक्यूम, दैट मीन्स नथिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर उन्होंने बताया देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ दीज वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, एंड दैट इज लाइट। लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। They can travel in vacuum also. The speed of these waves in air or vacuum is maximum, that is 3 × 10⁸ meter per second. Alright. फिर अच्छी बात हुई, यहाँ पे एक और जो है गड़बड़ हुई। वो क्या हुई कि ये जो थ्योरी दिया सब लोगों ने लाइट को एक वेव माना कि भाई ये जा सकती है। अब एक चीज़ तो साबित हो गई, भाई सन से अर्थ तक आ रही है, वैक्यूम में ट्रैवल जो है ये कर सकती है। बट फिर नेक्स्ट एक और इसमें फिनोमेना आया, वो क्या, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में क्या होता है, लाइट आती है, किसी भी एक मेटालिक सरफेस से टकराती है, और वहाँ पे वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, एंड इट गोज बैक। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ड्यू टू दैट उस मेटल का जो प्लेट है और मेटल की जो सरफेस है
उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड ड्यू टू दैट जो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है, इफ दे आर मूविंग दैट मीन्स दे कैन कॉज करंट ऑल्सो, राइट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो वेव थ्योरी थी वो नहीं समझा पाई, राइट। एक तरफ बोला गया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, वो पार्टिकल के फॉर्म्स में है, ठीक है। रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया, बट इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन नहीं समझा पाया, तो खारिज कर दिया गया। फिर आती है सेकेंड हमारी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में उसको बोला गया कि इसने बाकी सब समझा दिए, बट फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई, तो इसको भी होल्ड पे रख दिया गया कि भाई नहीं, अभी हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लैंक ने एक नई थ्योरी दी, दैट इज नोन एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। दैट इज ऑफ वेरी वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो अब हम नेक्स्ट थ्योरी, थर्ड थ्योरी देखते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बोला गया कि भाई लाइट जो होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी होती है। दैट मीन्स जब लाइट आ रही होती है तो एक्चुअली में वो एनर्जी पैकेट्स आ रहे होते हैं, ऑलराइट। एनर्जी पैकेट को क्या बोला गया? एनर्जी पैकेट को बोला गया फोटॉन्स, ठीक है। तो ये किसने थ्योरी दिया था? प्लैंक ने ऐसा बोला। प्लैंक ने बोला कि एक्चुअली लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से बनी हुई है, एंड जब जब लाइट फॉल होती है इसका मतलब वो छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं वो गिर रहे होते हैं, ऑलराइट। दे स्ट्राइक दो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स जो हैं वो फॉल हो रहे होते हैं, राइट। ये उन्होंने ऐसा बताया, और उन्होंने बताया हर एक पैकेट की एनर्जी पैकेट, हर एक पैकेट की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? दैट इज एच न्यू, ठीक है। वो क्या होती है? एच न्यू, ठीक है। ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं, इनको एक और नाम दिया क्वांटा, क्योंकि इसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोला गया तो उसे क्वांटा नाम भी दिया। तो इफ यू एवर हर्ड अबाउट क्वांटा ऑफ लाइट or you can say photon, then do remember that these are just the small packets of energy, all right। उसी का नाम हमने क्वांटा दिया है और हमने फोटोन बोला है। हर एक एनर्जी पैकेट में जितना एनर्जी होगा that would be h nu। h is the Planck's constant, it is a constant, 6.6 into 10 की power minus 34 joule second, and nu is the frequency of light, ठीक है। तो अगर हमें प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पता है, वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, ऑलराइट। यू कैन से फोटोन। तो ऐसे जो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स थे, नॉट पॉकेट्स, पैकेट्स जो थे लाइट के, उनको बोला गया फोटोन एंड द क्वांटा। और ये जो थ्योरी दी गई वो दी गई प्लैंक के थ्रू, ठीक है, एंड ही कॉल दैट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ऑलराइट। तो मतलब इन्होंने बोल दिया और भी छोटे लेवल पे बोल दिया दैट दीज आर जस्ट द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। अब देखो इससे, इस थ्योरी की हेल्प से जो है इंटरफेरेंस समझा दिया गया, डिफ्रैक्शन समझा दिया गया, ठीक है। इस वेव थ्योरी की हेल्प से जो वेव थ्योरी था, राइट। देखो पहली बार में जब पार्टिकल थ्योरी आई तो उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझा दिया, राइट। फिर आती है हमारी एक्चुअली में वेव थ्योरी, उसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन समझा दिया, राइट। अब आती है हमारी थर्ड वन, दैट इज द क्वांटम थ्योरी, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया, ऑलराइट। दिस एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑलराइट। तो यहां से ऐसा करते करते जब अलग अलग थ्योरीज अलग अलग फिनोमेना को समझाती है, तब एक महान बंदे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, वो आए। उन्होंने बोला कि तुम जो बता रहे हो कि भाई पार्टिकल नेचर है तो ये दो फिनोमेना इसने सॉल्व कर दिए, वेव नेचर है तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन सॉल्व कर दिया, और जो क्वांटम नेचर है तो भाई उसने वो बता दिया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है। बट एक्चुअली में लाइट जो है उसका नेचर दोनों है, दैट मीन्स इट इज ऑफ डुअल नेचर। वो कभी लाइट की तरह, वेव की तरह बिहेव कर सकती है, वो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। ये बात समझाई, एंड एक्चुअली में ये जितनी भी तीन थ्योरी हमने देखी, पार्टिकल, वेव एंड द क्वांटम, इन तीनों को कंबाइन कर दिया, ऑलराइट। एंड डी ब्रॉगली ने हमें एक नया एक्सप्लेनेशन दिया दैट जो पार्टिकल और जो वेव नेचर है लाइट का वो एक्चुअली में है, ऑलराइट, एंड इट बिहेव्स एज अ बोथ, ठीक है। ये दोनों ही तरीके से बिहेव करती है, ये पार्टिकल जो है पार्टिकल नेचर भी शो करती है और ये
वेव नेचर भी शो करती है लाइट, ऐसा उन्होंने बताया। और राइट, तब जाके लोगों को विश्वास हुआ अच्छा अब इसकी हेल्प से, बिकॉज दैट इज द डुअल नेचर, राइट, तो इस डुअल नेचर की हेल्प से अब सभी फिनोमेना को सॉल्व किया जा सकता है, सभी से फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग एट ऑल, राइट। तब जाके जो है डुअल नेचर आया, सबको समझ में आया। और राइट, उन्होंने बताया वेव नेचर, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर एंड प्रोपोगेट्स इन वैक्यूम, that is what the wave nature and the particle nature उसमें बोला गया with the help of this theory Einstein explained the photoelectric effect। तो यहाँ पे एक्चुअली में पता चला that it is of a dual nature। हम जो पार्टिकल और वेव पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे कि कुछ लोग बोल रहे थे पार्टिकल नेचर है, कुछ लोग बोल रहे हैं वेव नेचर है, दे आर ऑल गेटिंग कंफ्यूज कि आधे फिनोमेना तो पार्टिकल नेचर से सॉल्व हो रहे हैं, आधे फिनोमेना वेव नेचर से सॉल्व हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तब जाके डी ब्रॉगली ने सबको शांत करवाया और सबने उसको बताया कि भाई ये दोनों नेचर की है, इट इज़ ऑफ डुअल नेचर, पार्टिकल भी है और वेव भी है, और राइट, ये उन्होंने सबको बताया। जैसे ही सबको पता चला तब सब कुछ सॉल्व हो गया, बिकॉज इट इज़ ऑफ डुअल नेचर, दैट मीन्स सभी फिनोमेना हम इस डुअल नेचर से बता सकते हैं। बेसिकली लाइट इज ऑफ पार्टिकल एंड द वेव नेचर, ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, सोर्सेज ऑफ लाइट। बेसिकली व्हाट इज दैट सोर्स? सोर्स का मतलब होता है कुछ भी जो कि क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब लाइट आ कहाँ से रही है, ऑलराइट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें लाइट देता है, ऑलराइट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम तक लाइट पहुंचा रही है, दैट मीन्स that is the source of light, all right। if it is emitting light or if it is reflecting light, that is taken as the source of light, ठीक है। तो a body which emits light or reflects the light falling on it in all possible direction is said to be the source of light। basically there are sources of light, luminous, non-luminous, all right। so देखो, जैसे सन है, सबसे पहला सोर्स जो है हमारे दिमाग में आता है लाइट का, सन, all right। तो सन के पास किसकी एनर्जी, खुद की एनर्जी है, राइट। तो सन हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, डेफिनेट सी बात है। अगर हम सेकंड की बात करें, जैसे कि मून की खुद की लाइट नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो रात के टाइम में हमें लाइट देता है। व्हाट डज इट डू? ये एक्चुअली में सन से आती हुई लाइट को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट, और उसमें से हीट एनर्जी गायब कर देता है, राइट, क्योंकि हम तक रात को हीट एनर्जी नहीं पहुंचती है ना, इट इज सो कूल एंड द प्लीजेंट, राइट। सो देखो यहाँ पर जो एक्चुअली में मून रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट में, तो हमें क्या पता चलेगा, भाई मून से आ रही है रोशनी, हम तो यही सोचेंगे ना, मून से आ रही है रोशनी, और एक्चुअली इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट। सो that moon is also considered as the source of light because it is reflecting the light falling on it, all right, that's why it is also taken as the you can say the source of light। now let's divide the source of light into two parts, there are two parts, all right। types हम बोल सकते हैं, types of sources of energy, sources of light actually। so there are two types, the number one is the luminous, ठीक है, luminous source, और the second one is the non-luminous। now see, luminous वो सोर्सेज होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइक सन, ठीक है, और यू कैन टेकन एज अ लाइक बल्ब भी हम लोग बोल रहे हैं खुद की लाइट होती है, राइट, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एक्चुअली, ठीक है। और जो बाकी अदर नॉन लुमिनस में आता है, नॉन लुमिनस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती बट दे रिफ्लेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर टेबल भी है, तुमको टेबल क्यों दिखता है, टेबल तुमको इसीलिए दिखता है क्योंकि उससे आती हुई रोशनी तुम्हारे आंखों में आती है, नॉट कानों में, सॉरी, तो वो कहाँ, आंखों में आती है, राइट। अब आप बोलेंगे उसके पास तो लाइट ही नहीं है, तो उससे आती हुई लाइट क्यों आएगी? एक्चुअली जो तुम्हारे रूम में बल्ब है, रोशनी है, ठीक है, जो सोर्स है एक्चुअली में आइदर ट्यूबलाइट, एलईडी और समथिंग एल्स, सीएफएल, उनसे लाइट आती हुई तुम्हारे टेबल पे गिरती है। तुम्हारे टेबल पे गिरने के बाद वो उससे रिफ्लेक्ट होती हुई तुम्हारी आंखों में जाती है, तब जाके तुम टेबल को देख पाते हो, राइट। तो एक्चुअली में टेबल जो लाइट तुम्हारी आंखों तक पहुंचा पा रहा है, दैट मीन्स टेबल उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो उस पे गिर रही है, एंड दैट इज फ्रॉम द लाइट सोर्स इन योर रूम,
राइट तो यहाँ पे जो टेबल है वो एक्चुअली में नॉन लुमिनस सोर्स पे आता है, बिकॉज उससे भी लाइट आ रही है बट रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है, जस्ट लाइक मून। ऑलराइट, सो लुमिनस सोर्स जो होते हैं, हम इनका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? लुमिनस सोर्स मतलब the source which emit light, on their own. ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया आता है सन, स्टार्स, खुद की लाइट होती है उन सभी की, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ऑल दी CFLs, टॉर्चेस, कैंडल्स एंड ऑल। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेज पे। ठीक है, तो नॉन लुमिनस सोर्सेज होते हैं द सोर्सेज विच रिफ्लेक्ट लाइट falling on them. Alright, and इसके बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं मून। ठीक है, उसके अलावा एवरीथिंग लाइक टेबल, पेन, पेपर। ठीक है, so those are all the non-luminous sources. So basically see what happens is there are some bodies which emit light on their own, they are considered as the luminous, and there are bodies which do not have their own light but actually they reflect it when the other light falling on them, right? Those are the non-luminous sources. अब देखो, ये जो luminous and non-luminous है, इनके अंदर दो तरीके के हम और डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दैट इज द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। क्योंकि देखो, लुमिनस सोर्सेज में देयर आर सम सोर्सेज विच आर नेचुरल, जस्ट लाइक सन नेचुरल है, हम लोगों ने नहीं बनाया, राइट? इट इज गिवन टू अस बाय नेचर। स्टार्स ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें डेफिनेटली हमें नहीं बनाया गया, हमने नहीं बनाया मतलब, बट दे आर गिवन टू अस बाय नेचर, right? So sun and the stars are actually the natural luminous sources, and the bulb, the candle, the CFL, tube light, ये ऐसे sources हैं which are man made, right? तो those are considered as the artificial luminous sources. Similarly, यहाँ पर non luminous sources के लिए there are some non luminous sources which are given to us by nature, that is moon. ठीक है, दैट इज द नेचुरल नॉन लुमिनस सोर्स। और यहाँ पे कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने बनाई है, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय द ह्यूमंस, राइट? है ना? तो जो ऐसी ऑब्जेक्ट्स है जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लाइट को बट दे आर मैन मेड, दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड टू बी द आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑलराइट, मेक श्योर दैट यू नोट देम आउट। नाउ ये तो हमारे सोर्सेज ऑफ लाइट थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट, देखो मीडियम ऑफ लाइट का हमने क्या माना? मीडियम का मतलब कि भाई कुछ हमारे पास जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट चली जाती है, गुजर जाती है, या फिर जिन ऑब्जेक्ट्स में लाइट जाने की कोशिश करती है। Alright, those are taken as the medium of the light. Alright, and कुछ ऐसे substances जिसके अंदर से लाइट जा सकती है और जाने की कोशिश करती है, those are considered as the medium. और इसके लिए हमने 3 types of medium differentiate किए हैं। Alright, we have differentiated that. सबसे पहला जो आता है transparent. Alright, तो ये जो transparent you can say objects होती हैं, वो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पूरे तरीके से जाने देती है। दैट मीन्स 100% लाइट इज गोइंग थ्रू दैम, और यू कैन से जितना भी लाइट उन पे फॉल हो रहा है वो सब ट्रांसमिट हो रहा है। ऑलराइट, दैट इज ग्लास। ग्लास उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग इसे कैसे जज कर सकते हैं? आप लोग ग्लास को अपने सामने रखो, ठीक है? अगर आप उसके पीछे की चीज देख पा रहे हो, व्हाट इज बिहाइंड दैट ग्लास, इफ यू आर एबल टू सी दैट क्लियरली, दैट मीन्स light can go through that glass, or that would be considered as the transparent object. All right, so इसमें हम बोलेंगे light can, और ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे कुछ अच्छे से लिखते हैं,
these objects allow the light to transmit through them. खुद के अंदर से वो जाने देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग इसका ले सकते हैं, एयर भी एक ट्रांसपेरेंट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्लास, alright, so these are the transparent. Now let's talk about the second medium, that is translucent. Translucent objects जो होती हैं एक्चुअली वो ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को जाने तो देती है बट पार्शियल मतलब कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट क्लियरली। आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या है। जैसे बटर पेपर इज अ गुड एग्जाम्पल, फ्रॉस्टेड ग्लास इज अ गुड एग्जाम्पल। आपको पता चलेगा देयर इज बिहाइंड दैट ग्लास, देयर इज समवन बिहाइंड दैट ग्लास, सम ऑब्जेक्ट बिहाइंड दैट ग्लास, or either you can make out some color, but actually you are not able to see that thing clearly, ठीक है। तो उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। लाइट जा तो रही है बट ओनली पार्शियली, ऑलराइट। सो हम लोग इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स अलाउ द लाइट partially transmit through them. ठीक है, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास या फिर बटर पेपर। अब आती है तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में वो मतलब वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट जा ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल योर टेबल, ठीक है। अब उस टेबल में से लाइट नहीं जा सकती, ऑलराइट। लाइट उस पर फॉल होगी बट वो उसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। लाइट कैन नॉट गो थ्रू द टेबल, ऑलराइट। तो आप कैसे जज करेंगे सम ऑब्जेक्ट इज ऑपेक और नॉट? आप उसमें से देखने की कोशिश कीजिए व्हाट इज बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट। यू आर नॉट एबल टू सी दैट, यू आर नॉट इवन एबल टू मेक आउट समथिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से हम उसको बोल देंगे दैट ऑब्जेक्ट इज द अपेक वन और दैट ऑब्जेक्ट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द अपेक ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। सो हम लोग बोलेंगे दीज ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट, डू नॉट एक्चुअली do not allow light to transmit through them. ठीक है, बिल्कुल भी जाने नहीं देती। एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, टेबल, ऑलराइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं जिसके अंदर से यू आर नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट इज बिहाइंड दैट ऑब्जेक्ट। इवन अ ट्री ऑल्सो, ठीक है। ट्री का जो ट्रंक है, यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू दैट ट्रंक, तो दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑलराइट। तो इसे आप फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन। Alright, so that is the category of the objects, or you can say the media of the light. Alright, ये जो actually में हम लोग देख रहे हैं, these are the medium of the light, in the medium through which light is actually going through or trying to grow through, right? It tends to propagate through them also, right? So these are the mediums of light: the transparent, translucent, opaque object. Now you can decide which one is transparent, which one is translucent, which one is opaque. All right, that is the main thing. Now you have understood all the basic theories about the light and some of the things like sources and the
you can say the medium of the light. We will be talking about the characteristics of light along with the behavior of light at the interface of two media, along with some more terms, right, in the next lecture. All right. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.